हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का अपना टॉपिक है सैलरीज का अगला पार्ट प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब सैलरी वाली जॉब ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਸੈਲਰੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ may be related to retirement benefits or some other benefits। किस किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं? लीव ट्रैवल कंसैशन, ग्रेचुटी, पेंशन, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟ 1 ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਸੈਲਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਆਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, पहला है साडे कोल प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी दी डेफिनेशन। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी under section 17(3) profit in lieu of salary include any compensation received from present or past employer during relevant previous year or on termination of service or modification of terms of service। terms of employment ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ EMPLOYEE ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੇਮੈਂਟਸ received from present or past employer except given under section 10(10), 10(a), 10(10AA), 10(10)B, 10(11), 10(13), 10(13)A ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਆਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 10(10) ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एंड एनी पेमेंट आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। अगर प्रोविडेंट फंड तो भी कोई पैसा मिलता है जो टैक्सेबल बनता है तो वो भी ये आएगा। ये प्रोविडेंट फंड चो टैक्सेबल पोर्शन कितना निकलेगा आप प्रोविडेंट फंड वाले पॉइंट किया होया उन्होंने अगर तुम डिटेल सुनोगे तो तुहानू मिल जाएगा भी प्रोविडेंट फंड चो टैक्सेबल पोर्शन कितना निकलता है। ठीक है, खास तौर पर जो रिटायरमेंट के टाइम पर सारा प्रोविडेंट फंड वापस लेंदे हो उदों या जॉब छड्डन के टाइम पर प्रोविडेंट फंड लेंदे हो उदों। Any amount due to or received whether in lump sum or otherwise by assessee from any person। ठीक है, कोई भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ assessee ਨੇ ਕਿਸੇ person ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ EMPLOYER EMPLOYEE ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਿਫੋਰ ਹਿਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ EMPLOYMENT ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ तो वो ਜਿਹੜੇ है या जॉब ज्वाइन करने ਲਈ कोई स्पेशल गिफ्ट टाइप दिता गया तो वो ਇਹਦੇ ਚ आ जाएगा आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन। और जो जॉब खत्म हुई है उस टाइम पे कुछ कंपनसेशन वगैरह वट एवर बीइंग, ठीक है, अगर टाइम पूरा करके सर्विस रिटायरमेंट के टाइम पे मिले तो वो हो जाता जिवें ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन वगैरह। ठीक है, तो अगर विचकार छड्डी है तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वगैरह तो वो सारा कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा। All above payments are fully taxable unless exempted under section 10। ये सारियां ही fully taxable होंगियां except जे section 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ exempt ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ठीक है जी, हाँ जी। अगली स्लाइड से चल रहे हैं ਆਪਾਂ। सब तो पहली आइटम ਇਹਦੇ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ। ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ मतलब EMPLOYEE ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ट्रैवल ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ EMPLOYER ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ यानी ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1/10/97 ਨੂੰ 1/10/97 ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 10(5) 10(5) ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਇਹਦੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Through this provision, employees are encouraged to travel anywhere in India along with their families and to help employees to travel. The travel expenses are given by employer which are exempt under section 10 as per the following rules। हाँ जी, EMPLOYEE ਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। EMPLOYER ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ EMPLOYER ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ठीक है, EMPLOYER ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ।
पहली है इफ जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय एयर, जे उन्हें जर्नी बाय एयर की है, यानी बाय एयर सफर किया है घूमन लई। पहली गल याद रखना, घूमना इंडिया एनीवेयर इन इंडिया स्पैशल दसिया ने। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्टेड, इन्हां दोनों चो जो घट होएगा वो एग्जाम्प्ट है जी। तो असी बेसिकली सिर्फ ट्रैवल का खर्चा ही एग्जाम्पशन देनी है, बाकी कोई खर्चा एग्जाम्पशन नहीं देनी। तो ये कह रहा है इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नैशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर नैशनल कैरियर यानी जी इंडिया दी नैशनल कैरियर्स चल रही ने, मेनली आप कह सकते हैं एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, ये थ्रू जो उन्हें सफर किया हो या नहीं किया, तो इन्हों का जो किराया बनता वो बाय द शॉर्टेस्ट रूट, जी जगह पर गया तो जितों गया उतों तक का शॉर्टेस्ट रूट का जो किराया बनता है वो किराया, और एक्चुअल एक्सपेंसिस स्पेंट बाय एम्पलॉय ऑन दिस सच ट्रैवल, या उस ट्रैवल से एक्चुअल एक्सपेंसिस जिहड़े एम्पलॉय ने खर्च किए हैं, यानी उन्हें आप टिकटां लैके कितना खर्च किया है। दोनों चो जो घट होएगा वो माफ हो जाएगा अगर जर्नी बाय एयर की है। इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय रेल, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर और एक्चुअल एक्सपेंसिस, सेम गल एयर कंडीशन रेल फेयर फर्स्ट क्लास का, ठीक है जी। ते दूसरा है एक्चुअल एक्सपेंसिस। तीसरा केस है इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय एनी अदर मोड, हाँ जी पहले एयर हो गया, दूसरा रेल हो गया, तीसरा एनी अदर मोड, यानी ना तो बाय ट्रेन गया हो ना बाय जिहड़ा है एयर गया, वो किसी होर रस्ते चाहे प्राइवेट टैक्सी करके गया चाहे बस च गया, ठीक है, उन्हें कोई होर मोड यूज किया है। तो उस केस दे विच दो केसेस बन जाते हैं। इफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज कनैक्टेड बाय रेल, जे दोनों जगह रेल नाल कनैक्टेड ने तां की होएगा, तां असीं किराया कितना है एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर और एक्चुअल एक्सपेंसिस विच एवर इज लैस, ठीक है जी। जो घट खर्चा होया वो माफ हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी इंप्लॉयर ने एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर जर्नी जी है, अगर प्लेस ऑफ जर्नी जी है वो कनैक्टेड नहीं है, इफ प्लेस ऑफ जर्नी एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज नॉट कनैक्टेड बाय रेल, जे रेल नाल कनैक्टेड नहीं है, फिर अगों दो केस बन जाते हैं बेटा साडे कोल। इफ ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑपरेटिंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। अगर उत्थे रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिवें अपने पंजाब च पंजाब रोडवेज है, ठीक है, तो सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर है तो उसका खर्चा और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्पलॉय, ते जे नहीं हैगा तो उन्नी ही दूरी का एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर का खर्चा और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस, ये एग्जाम्पशन मिलती है। दो केस बन गए, इफ ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑपरेटिंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्टेड फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर, ठीक है, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट जो भी रोडवेज होएगी उसका फर्स्ट क्लास का किराया या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। ते जे नहीं हैगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इफ द रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग उन्नी ही दूरी का एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, अज्यूम्ड जर्नी परफॉर्म्ड बाय रेल, ਅਸੀਂ ये मान लिया कि जर्नी जी है रेल द्वारा ही परफॉर्म की गई है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्पलॉय ऑन सच ट्रैवल, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बेटा इत्थे सिर्फ ट्रैवल के खर्चों की एग्जाम्पशन मिलनी है, बाकी कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलनी, ये ध्यान रखना है। इस तो बाद ये रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने। अदर पॉइंट्स विच ब्लॉक ऑफ 4 years, हाँ जी, ए ब्लॉक विल कंसिस्ट ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स, एन एग्जाम्पशन अंडर दिस क्लॉज शैल बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ 2 जर्नी अंडरटेकन बाय एम्पलॉय इन 1 ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। 4 कैलेंडर ईयर के विच वो 2 जर्नी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, यानी हर 2 साल एक बारी वो किते घूमन जा सकता है, तो उन्होंने एग्जाम्पशन 2 साल एक बारी दे कह लो या 4 साल 2 बारी, 4 चो चाहे पहले साल 2 बारी कर ले, चाहे दूजे साल 2 बारी कर ले, चाहे चौथे साल 2 बारी कर ले, ठीक है जी। 2 जर्नी तक की उन्होंने एग्जाम्पशन मिल सकती है, 2 तो ज्यादा जाएगा तो फिर वो बाकी का टैक्सेबल होएगा। दूसरा कैरी ओवर क्लॉज, कैरी ओवर क्लॉज किदा है, जिवें 4 साल 2 बारी की एग्जाम्पशन है, पर 4 साल पूरे होंदे होंदे वो अजे एक बारी ही गया है, दूजी बारी उसकी पेंडिंग है, तो अगले 4 सालों चों जिहड़ा पहला साल है उस साल दे विच उहनूं 1 साल दी एक ट्रैवल की एग्जाम्पशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, यानी अगले 4 सालों चों 3 एग्जाम्पशन लै सकदा है, पर जिहड़ी पिछली कैरी ओवर एग्जाम्पशन है जिहदे करके 3 एग्जाम्पशन बनी है, वो एग्जाम्पशन पहले साल ही उहनूं फिल करनी पेगी, यानी पहले साल चो जा सकता है, उस तो बाद अगले 3 साल बाकी दी 2 पूरियां कर सकता है, या पहले साल ही चाहे बाकी दी 2 कर लवे, ਉਹਦੀ कोई चेंज नहीं है। पर कैरी ओवर क्लॉज भी पिछली अगर एक जर्नी पेंडिंग है तो वो अगले 4 सालों के ब्लॉक च पहले साल ही लेनी पेगी। रेल एयर और बस फेयर की ही एग्जाम्पशन मिलनी है।
एग्जम्पशन ओनली रिगार्डिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और एग्जम्पशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो वध नहीं मिलनी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक दी ही मिलनी है। फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਲੀਗਲੀ ਵੈਡਿਡ ਵਾਈਫ, ਹਸਬੈਂਡ, ਚਿਲड्रन एंड पेरेंट्स, brother, sister of the employee if they are wholly and mainly dependent upon the employee। यानी हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर wholly dependent on the employee। ठीक है जी। देन है नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 तो ज्यादा बच्चों वास्ते एग्जम्पशन नहीं मिलनी। दिस एग्जम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ 2 चिल्ड्रन, बट क्योंकि चेंज आई है 1/10/98 तो, बट दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चिल्ड्रन बोर्न बिफोर 1 अक्टूबर 98। 1/10/98 तो पहले अगर किसी के 2 तो वध बच्चे है तो ਉਹਦੇ ਤੇ रिस्ट्रिक्शन 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एंड आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर 1 चाइल्ड, अगर पहले बच्चे तो बाद दूसरे टाइम ते अगर मल्टीपल बर्थ हो जाता है यानी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उस केस दे विच भी जिहड़ी है एग्जम्पशन जिहड़ी है दूसरे बच्चे नूं क्योंकि कुदरत ने उन्होंने 2 की जगह 3 करता तो वो एग्जम्पशन जारी रहेगी। ठीक है, अदरवाइज जिहड़ी है दूजे बच्चे तो बाद एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, यानी एग्जम्पशन वो 2 बच्चों की ही लै सकेगा, किराया तो भावें इंप्लॉयर ने 3 बच्चों का देता हो, 4 बच्चों का देता हो। then last ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। any foreign allowance or perk under section 10(7) if given by government to its employees posted abroad। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਾउंस ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ fully exempt ਹੈ under section 10 subsection 7, allowances ਵੀ perquisites ਵੀ। then ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ gratuity under section 10 subsection 10। डेथ एंड डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी लिखना सी, इत्थे डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी लिखा गया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। हाँ जी, जो इंप्लॉई जॉब कर रहा है तो कई बार ड्यूरिंग जॉब वो डेथ हो जाती है तो वो वारसां नूं जिहड़ी है जिहड़ी उहदी ग्रेचुटी मिलती है, या रिटायर हुंदा तो उन्होंने आप नूं जिहड़ी है उहदी ग्रेचुटी जिहड़ी है इंप्लॉईज नूं इंप्लॉयर वालों ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी का मतलब है भी इन्ने साल तुसीं साडी सर्विस की है, उस सर्विस के एवज कुछ फंड ग्रेचुटी वर्ड जिहड़ा है वो ग्रेटिट्यूड तो है कि खुशी ना रिलेटेड है, तभी वो इन्ने साल अपनी सर्विस नॉन ब्रेकेबल सर्विस पूरी करके गया तो उन्होंने जिहड़ा है फंड मिलेगा इकट्ठा। ज़्यादातर गवर्नमेंट से सैमी गवर्नमेंट इंप्लॉईज नूं तो मिलता ही मिलता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जिहड़ियां लिमिटेड फर्म्स ने वो ग्रेचुटी दिंदियां अपने इंप्लॉईज नूं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो ग्रेचुटी जो कितना एग्जम्पशन मिलेगी। पहले तक गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में गवर्नमेंट इंप्लॉई और सैमी गवर्नमेंट इंप्लॉई वेयर गवर्नमेंट रूल्स आर एप्लीकेबल फुली एग्जम्प्टेड। हाँ जी, गवर्नमेंट ते सैमी गवर्नमेंट इंप्लॉईज नूं जो भी ग्रेचुटी मिलती है उहदे चों कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, सारी दी सारी ग्रेचुटी एग्जम्प्टेड है। फॉर अदर इंप्लॉईज दे विच इंप्लॉईज नूं 2 कैटेगरी च वंडिया गया। फॉर इंप्लॉईज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, वो वाले इंप्लॉई जिन्हां दी कवरेज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 च हुंदी है। These are the persons on non-managerial posts in factories। ये वो लोग ने जिन्हें फैक्ट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ नॉन मैनेजरियल पोस्ट ने, फोरमैन सुपरवाइजर हो सकते हैं पर मैनेजर नहीं। एग्जम्प्ट अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੱਕ एग्जम्प्ट है। नोटिफाइड लिमिट 20 लाख, ਲੈਸ ਐਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ अर्लीयर। अगर ड्यूरिंग सर्विस ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ रिटायर होया सी उत्थों ग्रेचुटी मिली तो वो एग्जम्पशन लै चुका वो वाली। ठीक है, वो जी एग्जम्पशन इत्थे लैस हो जाएगी बाकी दी एग्जम्पशन। मान लो पहले उन्हें कितने जॉब की सी उत्थों 5 लाख ग्रेचुटी दी एग्जम्पशन उन्हें लई सी तो उहदे लई नोटिफाइड लिमिट 20 लाख की जगह 15 लाख रह जाएगी। then 15 days salary for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months। 15 दिन की तनख्वाह हर वो साल जिहड़ा उन्हें जॉब च कंप्लीट किया या 6 महीने तो वध दा समा, मान लो उन्हें 25 साल 7 महीने काम किया तो असीं उन्होंने 26 साल गिनांगे। ठीक है, और हर 1 साल वास्ते 15 दिन की तनख्वाह मिलनी है। इत्थे ब्रैकेट च भी लिखा है डेट इज पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। सैलरी का मीनिंग की देंगे इत्थे, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस फुल। बेटा सब जगह ते आपां डेयरनेस अलाउंस एंटर्स इनटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट्स लैंदे आ, पर ग्रेचुटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पोगा, इनू पोगा कहांगे, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट शॉर्ट वर्ड
ਪੋਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ DA ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ DA ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਔਨ ਸੈਲਰੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਔਨ ਸੈਲਰੀ ਇਨਟੂ 15/26। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 26 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 26, ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ 26 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एग्जाम्पल देखने लगे आप, मिस्टर बाबू retired on 30th November 19 from a coal mine after putting a service of 28 years and 10 months. At the time of his retirement, he was getting a salary of 16,000 per month, and he used to get an increment of 500 per month on 1st April every year. His DA was 2,000 per month. Gratuity received 3,40,000. Find out his taxable gratuity if he is covered under Gratuity Act 1972। अगर पेमेंट ऑफ Gratuity Act ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੈਲਰੀ 16,000 ਹੈ ਤੇ 500 ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ठीक है। ड्यू डेट नहीं दसी, पर अपन ड्यू डेट की इत्थे लोड़ नहीं, आप जिहड़े सैलरी लैनी है लास्ट दौरान 16,000, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੂਜੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਵਰ ਅੰਡਰ ਪਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਲਰੀ ਲਾਸਟ ਰਨ ਹੈ 16,000, DA ਉਹਦਾ 2,000 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਲਾਸਟ ਰਨ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ 18,000 ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 18,000 ਗੁਣਾ 15/26 ਕਰਕੇ 10,385 ਰੁਪਏ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 28 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 29 ਸਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 29 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 10,385 ਨੂੰ 29 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 20 ਲੱਖ, ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 3,40,000, ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫॉर ਈਚ ਕੰਪਲੀਟਡ ਈਅਰ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਪਾਰਟ ਦੇਅਰ ਆਫ ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਆਫ 6 ਮੰਥ, ਉਹ 28 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 29 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3,01,165, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ, 3,40,000 ਤੇ 3,01,65 ਚੋਂ 3,01,165 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਬਲ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 3,40,000, ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ 3,01,165, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 38,835 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 1010 अदर इंप्लॉइज वास्ते जेडे कवर नहीं होंगे पोगा दे विच, exempted up to least of the following provided services more than 5 years or employee has not left service of his own। हाँ जी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तक एग्जाम्प्ट है, पर इंप्लॉई ने 5 साल तो पहले सर्विस नहीं छड्डी होनी चाहिए, ठीक है जी, ते 5 साल तो पहले अपनी मर्जी नाल नहीं छड्डी होनी चाहिए, ठीक है जी। इहदे पॉइंट आ गए नोटिफाइड लिमिट 20 लाख लेस एनी अमाउंट एग्जाम्प्टेड अर्लीयर। अगर कोई पहले एग्जाम्पशन लै चुका है तो वो लैस हो जाएगी, जिवें मैं पहले एग्जाम्पल च दस्सिया सी कि अगर 5 लाख की लै चुका है तो लैस होकर इत्थे 15 लाख लिमिट रह जाएगी। अगर उन्हें पहले एग्जाम्पशन लई है तो हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर एवरी 1 ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, मंथ्स टू बी इग्नोर्ड, इत्थे पूरे साल ही लेने हैं, चाहे 25 साल 11 महीने हो जाए तां भी 25 साल लेना है। और हाफ मंथ क्या 15 डेज नहीं, हाफ मंथ। और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव तिन्ना जो घट होएगा, यानी चेंज किहड़ी जगह ते आई है, ए ते सी पॉइंट सेम है जो पहले सीगे, बी पॉइंट दे विच 15 दिन की जगह हाफ मंथ आ गया और एवरेज सैलरी वर्ड आ गया, और तीसरा कंप्लीटेड ईयर ही लेने हैं, मंथ्स नू इग्नोर करना है। तो एवरेज सैलरी का मीनिंग की है, सैलरी सेम एज फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वास्ते सैलरी का मीनिंग सीगा बेसिक सैलरी प्लस DA एंटर्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ये तीन चीज़ां लैने होने आपां। तो ये तीन चीज़ां इत्थे लैके सैलरी दे मीनिंग, और मीनिंग दे विच नाल अगली शर्त की है सैलरी फॉर 10 मंथ्स प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाय 10। एवरेज सैलरी का मतलब 10 महीनों की सैलरी की एवरेज करनी है, ठीक है। तो पिछले 10 महीनों की सैलरी लैके रिटायरमेंट वाले महीने छड्ड के प्रोसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने वो रिटायर होया उस तो पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी लैनी है, ठीक है। तो उन्होंने आपां हाफ ना मल्टीप्लाई करके फिर नंबर ऑफ ईयर्स ना मल्टीप्लाई करके साडे कोल एग्जाम्पशन निकलेगी।
एग्जाम्पल देखांगे। Mr. Damodar retired on 15th June 2019 from a manufacturing company after putting service of 30 years and 7 months. He received a gratuity of 3,60,000. Basic salary of Mr. Damodar was 20,000 per month during 2018 and 22,000 per month during 2019. He was also getting DA 5,000 per month, which was increased from 4,000 on 1st April 19. 50% of DA is presumed to enter into salary for computation of all retirement benefits, but 100% of DA is part of basic salary for calculation of pension benefits. हाँ जी, इथे स्पेशल लिखता पेंशन बेनिफिट वास्ते 100% लेना है, ठीक है जी, सिर्फ पेंशन बेनिफिट वास्ते, अदरवाइज 50% है। कंप्यूट द टैक्सेबल ग्रेचुटी इफ ही इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। नॉट कवर्ड कहता जी हूं, ठीक है। तो पहले सैलरी देखांगे जी, पिछले 10 महीनों की आपां देखनी है। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। इग्नोर द मंथ्स ऑफ जून, जून महीने जो रिटायर होया, रिटायरमेंट तो पिछले महीने लिखने हैं, इन विच ही रिटायर, एंड कैलकुलेट सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रायर टू द मंथ ऑफ जून, दैट इज अगस्त 2018 टू मई 2019। हाँ जी, इस साल दे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और पिछले साल दे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने दोनों पासे। और क्योंकि उसकी सैलरी इंक्रीमेंट जनवरी तो लग रही है, देखो बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर दामोदर वाज 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग 18 एंड 22,000 ड्यूरिंग 19। तब पिछले 5 महीने 22,000 है, उस तो पिछले 5 महीने 20,000 है। तब 22,000 गुना 5 ਤੇ 20,000 गुना 5 एक कैलकुलेट कर लिया सी। और इसी तरह डीए भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, डीए ਜਿਹੜਾ है 1/4 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ डीए 5,000 है, उस तो पिछले 8 महीने 4,000। डीए 8 महीने का 4,000 लेना पेगा और 2 महीने का 5,000, क्योंकि डीए च चेंज आई है 1/4/19 तो अप्रैल तो। अप्रैल मई 2 महीने जिहड़े है वो वधे हुए डीए दे ने और बाकी पिछले डीए दे ने। पहले डीए 4,000 सीगा, ठीक है जी। उस हिसाब नाल 32,000 ते 10,000 42,000 और 50% एंटर करता है, 50% ऐड करके 2,31,000 साडी 10 महीनों की सैलरी आ गई। ਉਹਦੀ एवरेज करांगे 10 ਨਾਲ डिवाइड करके 23,100, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एग्जम्पशन कटांगे। एग्जम्पशन वास्ते ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ है स्टैट्यूटरी लिमिट ਜਿਹੜੀ कि 20 ਲੱਖ है, दूजा है एक्चुअल जो कि ਸਾਨੂੰ 3,60,000 मिलिया, तीजा है हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड। ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ 30 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਵਰ ਅੰਡਰ ਪੇ ਹੋਗਾ ਹੈ ਤਾਂ 2,23,100 ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਣਾ 30 3,46,500। ਤਾਂ 3,46,500 ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3,46,500 ਦੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸੇਬਲ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਆ ਗਈ 3,60,000 ਮਾਈਨਸ 3,46,500 ਕਰਕੇ 13,500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਆ ਗਈ। Only that part of DA enters a note ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ for calculation of all retirement benefit has been taken as part of basic salary for calculation of salary purposes, ठीक है जी। This is all about taxable gratuity। एक एग्जांपल अपने कोल हो रहा है, वो ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक है जी। Mr. Vivek retired on 21st October 2019 on completion of 60 years of age। 60 साल का हो गया जी, 31 अक्टूबर 2019 ਨੂੰ रिटायर हो गया after putting 32 years 7 months and 21 days service। 32 साल 7 महीने 21 दिन। He is a MBA, was promoted to the post of a marketing manager on 1st March 19। Other particulars of his salary and allowances are as follows: basic salary 40,000 per month, his salary was 30,000 per month up to his promotion as marketing manager। marketing manager ਉਹ 1 ਮਾਰਚ 19 ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 30,000 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 40,000 ਹੈ। और ਸਾਡਾ प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 20 तक, पर ਉਹ अक्टूबर ਚ रिटायर हो गया। उस हिसाब ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ देखना पेगा। dearness allowance 20% of his salary and 50% of it enters into salary for computation of retirement benefit। पहले गल ਤਾਂ DA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20% of salary है, ਤੇ यानी 40,000 का 20% हो गया तो 8,000, ਉਹਦਾ 50% ਅੱਗੋਂ एंटर्स करता है, यानी 4,000 एंटर करेगा। फिक्स्ड कमीशन 2,000 पर मंथ। फिक्स कमीशन है जी, कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है, ये ग्रेचुइटी वास्ते किते भी नहीं यूज होनी। ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਪੋਗਾ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟਰਨਓਵਰ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ ਹਿਮ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ 10 ਮੰਥਸ
prior to the month of retirement is 1,02,000. Bonus 20,000. His salary falls due on first day of each month. He received 4,50,000 as gratuity. And find out Mr. Vivek's taxable amount of gratuity. हाँ जी, सब तो पहले थल्ले की लिखे है for calculation of taxable gratuity average monthly salary of the employee, क्योंकि वो मैनेजर है जी तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਗਾ लागू नहीं होएगा, ठीक है। इसलिए एवरेज मंथली सैलरी चाहिए होगी ऑफ द एम्प्लॉय is to be computed and average monthly shall be calculated on the basis of employee salary of 10 months immediately preceding the month of retirement. अक्टूबर चो रिटायर होया जी तो 30 सितंबर तक दी सैलरी लवांगे जी। मार्च दे विच ओदी प्रमोशन हो गई सी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने जिहड़े ओदे वो 40,000 तनख्वाह वाले है तो 3 महीने आपां 30,000 तनख्वाह वाले ले लेने, ठीक है जी। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏ ਵੀ, ਡੀਏ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਹੀ 20% ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ month of retirement. In case salary of 10 months shall be from 1st January 2019 to 1st October 2019, salary of the month of retirement is to be ignored. हाँ जी, तो एवरेज मंथली सैलरी की बन गई जी बेसिक सैलरी प्लस डी एंटर्स प्लस कमीशन। ये आपां गल कीती है भी ਇਹਦੀ डेफिनेशन च की आंदा। दैन हुण सैलरी कट रहे जी आपां बेसिक सैलरी 1/1/19 तो लैके 1/3/19 तक 3 महीनों की सैलरी जी है। ये 1/1/19 वाली जी सैलरी है एक्चुअली दिसंबर महीने की सैलरी है। आप टोटल 10 महीनों की सैलरी लैनी है, ठीक है। आप गिने सीगे भी मार्च तो लैके सितंबर तक 7 महीने बन जाते हैं तो उस तो पिछले 3 महीने हो जाते हैं। बेसिक सैलरी 1/1/19 तो 1/3/19 तक 3 महीनों की 30,000 तो अगले 7 महीनों की 40,000, 90,000 तो 2,80,000 होगी जी। 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। 370 ਦੇ 90 + 280 ਉਹ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ 50% ਐਂਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 50% 37,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਕਸਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਟਰਨਓਵਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ 1,02,000 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10/12 ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ 1,02,000 तक। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की एग्जम्पशन कैलकुलेट करने वास्ते सैलरी जी है वो 5,09,000 रुपया जी साडी बनती है। 5,09,000 का टोटल है तो 10 नाल डिवाइड करांगे तो एवरेज आ गई 50,900, ठीक है जी। सर्विस उन्हें कंप्लीट की है 32 साल, महीने ते दिन आप इग्नोर करने हैं इस एग्जम्पशन वास्ते, तो 32 साल। exempted gratuity कितना आएगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स इज exempted। स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख रुपये। हाफ मंथ सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो 50,900 का हाफ, उस बाद 32 नाल मल्टीप्लाई कर देना 8,14,400। ते ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी है क्वेश्चन च सन दित्ती हुई है ऊपर, ओनू ग्रेचुटी रिसीव हुई है जिहड़ी वो 4,50,000 रुपये है। ग्रेचुटी जिहड़ी रिसीव हुई है ओनू 4,50,000 रुपये है। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एग्जम्पशन कटांगे। तिना चो जो घट है तो 4,50,000 ही घट है, 4,50,000 ही उन्होंने मिले तो 4,50,000 ही एग्जाम्प्ट है। तिना चो घट वाला एग्जाम्प्ट हो गया तो यदि टैक्सेबल ग्रेचुटी नील आ गई, ठीक है जी। जे आप इसकी सैलरी इनकम कढ़नी हो तो सैलरी इनकम च आप बोनस भी लवांगे, फिक्स कमीशन भी लवांगे सैलरी इनकम च, ठीक है। सैलरी कैलकुलेशन वास्ते जी सैलरी यूज हुई वो नहीं लैनी तो उस क्वेश्चन डीए इतने सैलरी अगर कटनी हो डीए 74,000 पूरा ले लांगे, ठीक है। फिक्स कमीशन ले लांगे, बोनस ले लांगे और ग्रेचुटी नील लवांगे। अगर ग्रेचुटी टैक्सेबल निकलती तो ग्रेचुटी इतने पा लेनी सी, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेचुटी एंड लीव ट्रैवल कंसैशन जो पॉइंट है ये पूरा पॉइंट आप डिस्कस कर लिया। थैंक यू ऑल। रैफरेंस वास्ते तुसी कल्याणी पब्लिशर की अपनी बुक देख सकते हो जिहदे चों आपां सारी जिहड़ी है ये प्रेजेंटेशन तैयार की है तुहाडे लई और क्वेश्चन तैयार किए हैं।